The third category of normal form is GNF. It is very, very important normal form from the examination point of view as well, right? So this is called Gray-Batch normal form. So let's get started with the definition. So a context-free grammar is in GNF. A context-free grammar is in GNF if every production is of the form of A goes to small a alpha. मैं repeat कर रहा हूं. Definition says a context-free grammar is in GNF if every production is of the form of A goes to small a alpha, where alpha belongs to V and star. सर डेफिनेशन सर रिपीट कर दो एक बार. हेलो, सर डेफिनेशन रिपीट कर दो. डेफिनेशन है a context free grammar is in GNF if every production is of the form of A goes to small a alpha. So this is a basic form of GNF. Capital A goes to small a alpha. Here alpha represents V n star, and this small a is any terminal. You can write any terminal in place of small a, right? So here the value of alpha can be null also. यहाँ पे आपका जो अल्फा है, it can be null also. In that case, you will be left with capital A goes to small a. If alpha is equals to null, right? So your value of alpha can be null also. So in that case, your main production will be replaced with capital A goes to small a, right? It means that it is having one terminal, single terminal on right hand side, right? And keep this point in your minds that every production on left hand side there is only one variable, and on right hand side you should be proceeded with terminal, and it is only single in number. That is, you will be proceeded with small a, after that alpha. So alpha belongs to V n star. Any number of variables can be there. So let's take an example. So इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. So we have some valid examples are A goes to small a capital B, S goes to B capital A, C, D goes to C, D, F, G, and A goes to small a if alpha is null. So these are valid. All the productions are valid examples for GNF. So now take a look on invalid examples. A goes to double A B. So this is a invalid. A goes to small a B, small a, invalid. Capital A goes to 2 times small a, S goes to A B, E goes to E F small a. So all these examples are invalid examples because they are not the part of this category, right? So every production will be proceeded with single terminal. If you don't want to take variable, so simply replace that variable with null because that variable is alpha. Am I clear? Am I clear with the definition of GNF? So these 4 examples are listed under the category of valid GNF form. And these 5 productions are category. टर्मिनल नल नहीं हो सकता है. हाँ जी, क्या बोल रहे हो?
Terminal should not be null. क्या? Terminal. टर्मिनल नल नहीं होता बेटा कभी भी। Okay sir. अल्फा की वैल्यू नल हो सकती है, दिस इज अल्फा। इसको आपको रिप्लेस करना है या तो नल के साथ या इसको रिप्लेस करना है आपको वेरिएबल के साथ। वेरिएबल एक भी हो सकता है और रिपीट भी हो, मल्टीपल भी हो सकते हैं। क्लियर है? करें आगे, मेथड स्टार्ट करवाऊं इसका कन्वर्शन का? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। So write down first example. Construct a grammar in gray batch normal form. Construct a grammar in gray batch normal form equivalent to the grammar S goes to S, capital S goes to capital A slash A, capital A goes to capital S B. So you will be given with 4 productions, 2 productions for S and 2 for A. Board visible है? No sir. सर स्टेटमेंट रिपीट करना एक बार। What you have to do, construct a grammar in gray batch normal form equivalent to the grammar. Construct a grammar in gray batch normal form equivalent to the grammar. Capital S goes to capital A slash small a, comma capital A goes to capital S slash B, right? So first of all you will have to convert this grammar to GNF. So as in last lecture we have done the conversion for CNF and it consists of 3 steps, number 1, number 2 and number 3. So CNF is having a total number of 3 steps. Similarly a GNF will consist of 4 to 5 steps, right? Your GNF will consist of 4 to 5 steps. So let's get started with the procedure. So first of all, step number 1. Step number 1. So step number 1 is having what the 4 parts. बेटा साथ साथ में प्रोसीजर लिखते जाना आप लोग। Step 1, part 1. You will have to check for null production. Check, is there any null production present in your given grammar? If there is any null production, then you will have to remove that null production. Null productions are those productions which is having right hand side symbol null or epsilon, right? So we don't have any null production present in the given grammar, so there is no need, because no null production in given grammar, therefore no need for this step. Am I clear? यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। स्टेप 1 का पार्ट ए क्या कहता है, पार्ट फर्स्ट क्या कहता है, आपको चेक करना है कि whether there is any null production present in your given grammar. If there is any null production, then you will have to eliminate that null production. क्योंकि इस केस के अंदर हमारे पास null production नहीं थी तो हम उसको रिमूव
नहीं कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर है? स्टेप 1 का पार्ट 2। सुमित म्यूट कर यार। पार्ट 2, चेक फॉर यूनिट प्रोडक्शन। आपको क्या चेक करना है? यूनिट प्रोडक्शन चेक करनी है। जैसे कि S goes to A goes to B and B goes to C। कोई इस तरह की प्रोडक्शन है? So again, as there is no unit production, there is no chain in your grammar, therefore no need for this step। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। सर यूनिट प्रोडक्शन में क्या देखना था? बेटा यूनिट प्रोडक्शन होती है, अगर मैंने एक बात आपको बताई, आपने किसी और को बता दी, उसने किसी और को बता दी, मींस अ ठीक। सॉर्ट ऑफ चेन इज देयर। ओके सर। ठीक है, लेकिन हमारी जो गिवन ग्रामर है उसके अंदर कोई चेन नहीं है। S गोज टू डबल ए है, डबल ए कहीं पर नहीं जा रहा है। यस सर। ठीक है, चेन नहीं बन रही है कोई भी, इसलिए इसकी भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, In this example, variable is double A. हाँ डबल ए है ना, और डबल ए कहीं पर नहीं लेकर जा रहा है ना मेरे को। आपके पास गिवन ग्रामर में है S गोज टू ए, लेकिन ए आपको कहीं पर नहीं लेकर जा रहा, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है, चेन नहीं है। Okay, sir. ये मैं रब कर दूं, लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. चलो लेक्चर के बाद में ना इसके नोट्स भी आपको भेज दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है? सर जी स्टेप वन किसका है? स्टेप 1 स्टेप 2? बेटा जीएनएफ की कन्वर्शन कर रहे हैं ना हम लोग। कहाँ से सोकर आया तू? सच्ची सर सो कर रहा है? हाँ जी, नहीं सर ठीक। जो हम सोल्व कर रहे हैं जीएनएफ के अंदर कन्वर्शन कर रहे हैं, उसका स्टेप 1 का ठीक सर। पार्ट 1 और पार्ट 2 है। स्टेप 1 के 4 पार्ट्स हैं, ठीक है? सो पार्ट थर्ड, सो थर्ड है स्टेप 1 का ही पार्ट 3। स्टेप 1 का जो है, वी हैव अ पार्ट नंबर 3 इज what you have to check, you will have to check that your given grammar which is given to you, it should be in CNF, it should be in CNF। तो CNF की कैटेगरी क्या थी? so already in CNF, ठीक है? otherwise you will have to check for CNF। CNF क्या होती थी आपकी? A goes to small a and capital A goes to capital B। C means राइट हैंड साइड के ऊपर आपके पास एक टर्मिनल होना चाहिए, और राइट हैंड साइड के ऊपर मैक्सिमम और मिनिमम 2 वेरिएबल्स चाहिए। तो आपकी जो गिवन ग्रामर है वो ऑलरेडी CNF का पार्ट है, इसलिए इसकी भी जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको लिखना है गिवन ग्रामर is in CNF, therefore no need for this step। जहां कहीं पर भी आपका नल प्रोडक्शन गिवन होती तो आपको कन्वर्ट करना था, ठीक है? अगर आपकी यूनिट प्रोडक्शन गिवन होती तो आपको उसको भी एलिमिनेट करना था। अगर ये CNF में नहीं होते तो मेरे को इनको पहले CNF में लाना था। जो CNF को आपके लास्ट लेक्चर में मैंने 3 स्टेप्स बताए थे ना, वो यूज करके मैंने इसको सबसे पहले क्या करना था, इसको कन्वर्ट करना था और CNF बनाना था। एम आई क्लियर? सर रिपीट करना एक बार। क्या करूं? रिपीट करना सर, ये मिस बेटा हो गया सर। मैंने जो अभी आपको 3 स्टेप्स बताए हैं ना, तो इसके sir. अंदर मैंने सब में लिखा है नो नीड फॉर दिस स्टेप। ये क्यों Yes, लिखा sir. है? बिकॉज हमें इसकी जरूरत नहीं है। नहीं है सर। तो इफ इन केस अगर आपकी गिवन ग्रामर के अंदर नल प्रोडक्शन होती तो मैंने उसको रिमूव करना था, अगर उसके अंदर यूनिट प्रोडक्शन होती
तो मैंने उसको रिमूव करना था। सिमिलरली अगर ये GNF का पार्ट नहीं होता, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर आपके पास ये चीज होती S गोज टू स्मॉल a कैपिटल A, ये GNF का पार्ट नहीं है, तो मैंने इसको कन्वर्ट करना था और GNF में लाना था। समझ आई? यस कि सर। मेरी जो गिवन ग्रामर है वो ऑलरेडी CNF का पार्ट है। गिवन ग्रामर क्या है आपके पास? S गोज टू A स्लैश ए। A गोज टू S स्लैश B, तो ये ऑलरेडी आपका CNF का पार्ट है। ये ऑलरेडी आपका CNF का पार्ट है, तो इसलिए मेरे को इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। स्टेप 1 का पार्ट 4, स्टेप 1 का पार्ट 4, सो पार्ट 4 क्या कहता है? रीनेमिंग ऑफ वेरिएबल्स। क्या करना है आपको? पार्ट 4 सेज दैट रीनेमिंग ऑफ वेरिएबल्स। तो जिस ऑर्डर के अंदर आपके पास वेरिएबल्स है उसी ऑर्डर को आपने मेंटेन रखना है। दैट इज S is renamed as A1, उसके बाद था A is renamed as A2. So after renaming, you will have to rewrite your productions. So आपकी प्रोडक्शन क्या बन जाएगी? A1 goes to A2, A2 slash A. Similarly, A2 goes to A1 slash B. तो अब आपकी ओरिजिनल प्रोडक्शंस यहीं पे छूट जाएंगी, ये वाली प्रोडक्शंस बाकी स्टेप्स में आगे चली जाएंगी। ठीक है? सो these four productions will be used further instead of original productions. Am I clear? यहां पे आपका जो स्टेप नंबर 1 है वो खत्म हो गया है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। स्टेप 1 के पार्ट 1 में क्या करा था हमने? नल प्रोडक्शन चेक करी थी। पार्ट 2 में क्या चेक करा था? यूनिट प्रोडक्शन चेक करी थी। पार्ट 3 के अंदर क्या करा था? वी हैव टू चेक फॉर वेदर योर गिवन ग्रामर इज इन CNF और नॉट। एंड लास्ट पार्ट इज पार्ट 4, you have to rename your original variables and kindly maintain the proper order, serial order. That is, your first variable will be listed at first position followed by other variables. So S will be renamed as A1. Why I have used this subscription A1, A2, let you know in later half. ठीक है? S will be renamed as A1, A will be renamed as A2. तो जो आपकी प्रोडक्शन थी, पहली प्रोडक्शन क्या थी आपकी? पहली प्रोडक्शन थी S goes to A slash A। इसकी जगह पे मैंने लिख दिया A1 और इसकी जगह पे आ गया A2। सिमिलरली फॉर दिस A goes to SS, इसकी जगह पे आ गया ये और इसकी जगह पे आ गया ये। समझ आ गया? Yes or no? Yes, sir. यस सर। आगे चलें। सर ऐसा क्यों किए हैं सर? सो दिस इज अबाउट योर स्टेप नंबर 1। ये पेपर में बेटा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, याद रखना।
So step number 2 is write those productions which are in required form. So step 2, first of all, you will have to write those productions which are in required form. So step number 2 says that write those productions which are in required form. Required form means in GNF. ठीक है? तो फर्स्ट स्टेप के बाद we have A1 goes to A and A2 goes to B. So these two productions are listed under the category of required GNF. Why? Because it is having only one terminal on right hand side. It is having only one terminal on right hand side, right? After that, now check for subscripts. क्या करना है? After that, check for subscripts. Subscripts क्या थे आपके पास? A1 goes to A2, A2 and A2 goes to A1, A1. अब आपको कंपैरिजन करना है. क्या करना है? कंपैरिजन करना है. हमारे पास तीन कंडीशंस हो सकती हैं. या तो आपको कंपेयर किसको करना है? ये वाला जो वेरिएबल है इसका सब्सक्रिप्ट राइट हैंड साइड के पहले वेरिएबल के सब्सक्रिप्ट के साथ कंपेयर करना है, राइट? क्या करना है? द लेफ्ट हैंड साइड सब्सक्रिप्टेड वैल्यू शुड बी ऑलवेज लेस देन द फर्स्ट वेरिएबल ऑन राइट हैंड साइड, राइट? तो कौन कौन सी तीन कंडीशंस आ सकती हैं? तीन कंडीशंस आ सकती हैं आपके पास. फर्स्ट, लेफ्ट हैंड साइड सब्सक्रिप्टेड वैल्यू जो है वो छोटी होनी चाहिए. ये हमें चाहिए, ठीक है? तो ये अगर आपके पास है तो आपने उसको कुछ नहीं करना, डू नथिंग. ये बिल्कुल ओके कंडीशन है हमारे पास. अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड का जो सब्सक्रिप्ट है बड़ा हो जाता है तो लेफ्ट हैंड साइड सब्सक्रिप्ट इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड सब्सक्रिप्ट, आपने क्या करना है? पंपिंग लेमा 1 लगाना है. अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड का सब्सक्रिप्ट जो है वो बराबर हो जाता है राइट हैंड साइड के सब्सक्रिप्ट के साथ, तो व्हाट यू हैव टू अप्लाई? पंपिंग लेमा 2. अभी बताता हूं होते क्या है. ये कंडीशन समझ आई आपको तीनों? नो सर. क्या करना है? जो आपके पास 4 प्रोडक्शन आई थी स्टेप नंबर 1 के अंदर, स्टेप नंबर 1 के अंदर जो आपके पास 4 प्रोडक्शंस आई थी उसमें से सबसे पहले आपको देखना है कि हमारी ओरिजिनल प्रोडक्शन के अंदर कौन कौन सा सिंबल आ चुका है. एक मिनट बेटा होल्ड करना जरा. ठीक है बेटा, व्हाट यू हैव टू डू?
first of all, you will have to write those productions which are in required form. So A1 goes to small a, A2 goes to small b. They are in required form, right? But these two productions are not in required form. Why? Because on first right hand side, the first symbol should be terminal according to your GNF. GNF क्या होती है? A goes to small a if alpha is null, or A goes to small a capital B. ये होना चाहिए. या फिर A goes to small a B C. Means on right hand side there will be always one terminal. After that any number of variables can be there. Clear है? ठीक है बेटा. अब हमने क्या करना है, आपको सबस्क्रिप्ट की वैल्यू चेक करनी है. जो आपके पास पहला सबस्क्रिप्ट है A1, ये वाली जो 1 वाली वैल्यू है ये इससे छोटी होनी चाहिए. ठीक है, तीन कंपैरिजन हो सकते हैं, या छोटी होगी या बड़ी होगी या बराबर होगी. इन तीनों के अलावा कुछ नहीं हो सकता है. तो हमें क्या चाहिए? इट शुड बी ऑलवेज स्मॉलर. सो 1 इज स्मॉलर देन 2. सो इन दैट केस यू विल डू नथिंग. You will take this production to later steps, right? पढ़ लिया form? पढ़ लो. So you will take this production to later. अच्छा, चलो ठीक है. After that, if the value of subscript which is present at the left hand side, if it is greater, for example, in this case, 2 is greater than this 1. So in this case, I will go for PL1. PL1 stands for pumping lemma 1, right? So if both the subscripted values are equal, you will go for pumping lemma 2, PL2. तो अभी आपको बताता हूँ pumping lemma 1 क्या होता है और pumping lemma 2 क्या होता है, right? So this production is in required form. So इसको हम स्टार मार्क कर लेंगे. ये हमारी जाएगी स्टेप नंबर 4 के अंदर. सर ये सब assumptions हैं कि जैसे 2 1 से बड़ा है या 1 नहीं 2 बेटा, से दिख छोटा रहा है आपको, मैं थोड़ी ना assume कर रहा हूँ. 1 जो है है। वो हमेशा आपका 2 से बड़ा ही होगा. छोटा. सॉरी, 1 is always smaller than 2. हाँ जी सर, वो तो पता है. ठीक है, इस हिसाब से देख रहे हो आप. हाँ जी, हाँ जी. ठीक ये है. मैंने जो ऊपर वेरिएबल लिए थे ना स्टेप नंबर 1 के अंदर, जब मैंने रीनेमिंग करी थी वहां पे A1 A2 लिया था ना, हाँ जी सर. तो ये वही प्रोडक्शन है आपकी दो. हाँ जी सर, ठीक है. समझ आया? हाँ जी सर. तनवीर समझ आया कि नहीं आया? दोबारा बताऊं? मैं Yes, अपने sir. आप कुछ नहीं कर रहा हूं. जो मेरे पास प्रोडक्शंस बनकर आई हैं स्टेप 1 में, उसके बाद जो आया वो चीज कर रहा हूं मैं. हाँ जी सर, आ गया. हाँ जी सर. डन. सो अब इस केस के अंदर ये जो आपकी पहली प्रोडक्शन है A1 goes to A2 A2, यहाँ पे क्या है? 1 is smaller than 2. सो इसको आपने कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट स्टार मार्क कर लो. ये आपका जाएगा स्टेप नंबर 4 के अंदर. ठीक है, ऐसी सर प्रोडक्शंस आपकी सर स्टेप 4 के अंदर सोल्व हेलो होती हैं. हेलो हाँ जी. सर, जैसे आपने स्टेप नंबर को 4 पे जैसे आपने रीनेमिंग की थी, जैसे आपने किया कि एज इज रीनेम एज A1, सर हाँ तो जी. उस केस में हम एस को A2 लिख के और ए को A1 भी तो लिख सकते हैं ना? नहीं नहीं, उल्टा नहीं करना. वही तो मैंने आपको बोला है कि मेक दी प्रॉपर ऑर्डर. हमेशा फर्स्ट वेरिएबल को नंबर 1 देना है, अगले वेरिएबल को नंबर 2 देना है. अदरवाइज सर आपका ऐसे ये भी चीज पंपिंग लेमा नहीं लगा पाओगे आप. सर एज हम अगर हम एस को A0 और ए को A1 भी लिख सकते हैं ना? हाँ, वो लिख ऑर्डर. सकते हो. ओके सर. एस को आप A0 भी लिख सकते हो, और जो ए है उसको A1 भी लिख सकते हो, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेने हैं, ये याद रखना. 0 1 2 3 एंड सो ऑन. जितने वेरिएबल्स हैं उतनी सपोजिशन होगी आपकी. ठीक है, और ए की जगह पे बी भी ले सकते हो, सी भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो. समझ आ गया? ये कौन, ऋत्विक था कि रोहित था? सागर सर. सागर. ठीक है, समझ आ गया सागर? यस सर, यस सर. आगे चलें. अब देखिए, ये वाली जो प्रोडक्शन है ये हमारा अभी तक स्टेप नंबर 2 ही चल रहा है. ठीक है, अब स्टेप 2 के अंदर
using A2 goes to A1 A1। यहाँ पे क्या है मेरे पास 2 is greater than 1, ठीक है। so in that case हमने क्या करना है, apply lemma 1, apply इसको बोलते हैं lemma 1, पंपिंग लेमा नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेमा 1, ठीक है। लेमा 1 क्या कहता है कि जो आपका राइट हैंड साइड के ऊपर पहला वेरिएबल है, राइट हैंड साइड के ऊपर पहला वेरिएबल है, उसको उसकी प्रोडक्शन के साथ रिप्लेस करना है, ठीक है। तो A1 की मेरे पास दो प्रोडक्शन थी, एक थी A1 गोज टू A और दूसरा था A1 गोज टू A2, ठीक है। तो आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड के ऊपर जो पहला वेरिएबल है, तो ये क्या बन जाएगा, A2 गोज टू, इसकी पहली वैल्यू क्या है A, तो यहाँ पे आ गया स्मॉल a A1 और दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। A1 की दूसरी वैल्यू क्या है A2 A1। Am I clear? A2 goes to A2 A1। ये आपका स्टेप नंबर 2 फिनिश है। यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछो फटाफट। बेटा कोई डाउट है तो पूछिए। सर रिपीट कर दो एक बार। इसके अंदर क्या करा है, जो आपके पास दो प्रोडक्शंस आई थी, एक आई थी A1 गोज टू A2, इसको आपने कर लिया था स्टार मार्क, कुछ नहीं करा, स्टेप 4 के लिए रख दिया। और दूसरी प्रोडक्शन आई थी A2 गोज टू A1। सो हियर योर लेफ्ट हैंड साइड सबस्क्रिप्ट इज ग्रेटर देन the subscript, so first variable present on the right hand side, so 2 is greater than 1, so in that case you will go for lemma 1. What lemma 1 says, lemma 1 says that whatever the variable present at the first position of right hand side, it will be replaced with its corresponding production, right? So A1 will be replaced with these two productions, जो उसकी original production थी ना, A1 की ओरिजिनल प्रोडक्शन थी, तो एक की जगह पे यहाँ पे कर दिया A, प्रोडक्शन बन गई A1 और दूसरा था A2 A1, ठीक है। सो ये सर है A1 आपका, के, हाँ जी सर A1 को रिप्लेस करके A2 सर कैसे आएगा? बेटा उसकी जगह पे ये प्रोडक्शन गिवन नहीं है आपके पास, ये गिवन है ना, A1 की कितनी प्रोडक्शन गिवन थी, ये गिवन है कि नहीं है, A1 गोज टू A2, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, दैट्स इट। ओके सर, समझ आ गया? यस सर। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, सो अगेन हर एक स्टेप के बाद आपको वो वाली प्रोडक्शंस लिखनी है जो रिक्वायर्ड फॉर्म में आती चली जा रही है। सो स्टेप 2 के बाद आया था मेरे पास A1 गोज टू A, A2 गोज टू B एंड A2 गोज टू A1। ये वाली तीन प्रोडक्शंस आ गई थी, ठीक है। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर इनके बाद सर क्या लिखे हैं? किनके बाद बेटा? रिक्वायर्ड, इनके रिक्वायर्ड बाद सर GNF, ओके सर। which are in required GNF, जो मेरी GNF का पार्ट बनता चला जा रहा है वो हर एक स्टेप के बाद आपको लिखना है। तो ये तीन प्रोडक्शंस रिक्वायर्ड में आ गई थी। अब आप में से मेरे को कौन बताएगा कि जो रिक्वायर्ड में नहीं थी, कौन सी प्रोडक्शन स्टेप 2 के बाद रिक्वायर्ड फॉर्म में नहीं थी, कौन बताएगा? लास्ट वाला सर। हाँ जी लास्ट बताओ ना, बोलो जरा क्या थी। A2 goes to small A1, A2 goes to small A1। बेटा ये तो GNF है, ये तो रिक्वायर्ड में है ऑलरेडी। सर A2 goes to A2 A1।
शाबाश। A2 goes to A2, A2, A1। एक ये वाली रिक्वायर्ड में नहीं है और एक वो वाली है जिसको मैंने स्टार मार्क करा हुआ है, ठीक है। ये वाली तो ऑलरेडी जीएनएफ का पार्ट है, ये भी जीएनएफ है, ये भी जीएनएफ है। इसको थोड़ी ना अब मैं छेड़ूंगा जो ऑलरेडी रिक्वायर्ड में आती चली जा रही है। समझ आ गया सर Yes, स्मॉल A1 नहीं आएगा? बेटा? स्मॉल A1 जीएनएफ द बेसिक फॉर्म की ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। A goes to small a b, कहते ऑलरेडी रिक्वायर्ड चाहे क्यों मैं लिखूंगा? समझ आया क्या नहीं? नो सर। जोबन ये तो मेरी रिक्वायर्ड फॉर्म के अंदर है ना। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मेरे को एक वेरिएबल चाहिए, वो है। राइट हैंड साइड के ऊपर एक टर्मिनल चाहिए, है। उसके बाद एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स कैन बी देयर। तो ये तो ऑलरेडी रिक्वायर्ड में है, इसको क्यों कन्वर्ट करूंगा मैं? जी सर। समझ आ गया? आगे चलते हैं। अब यहां पे क्या लगेगा? यहाँ पे आपका अप्लाई होगा लेमा 2। Why lemma 2? Because 2 and 2 is equal, and in case of equal subscript, your value, your lemma 2 will be applicable. अब lemma 2 क्या कहता है? जो सबस्क्रिप्ट आपका बराबर है, यहाँ पे बराबर कौन सा है? 2। आपने एक वेरिएबल अज्यूम करना है, let z2। ये वाला सबस्क्रिप्ट सेम होना चाहिए जो बराबर आया है। यहाँ पे x आ सकता है, y आ सकता है, z आ सकता है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। x2 ले लो, y2 ले लो, z2 ले लो। तो मैंने क्या लिया है? z2। 2 शुड बी देयर बिकॉज 2 वाला वेरिएबल बराबर है। सो लेट z2 बी न्यू वेरिएबल। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे हाथ रख के, यहाँ पे हाथ रखा और बाकी दो वेरिएबल्स को z2 के बराबर पुट कर दिया। z2 goes to a2 a1 प्लस इसी के लास्ट के ऊपर z2 लगाना है आपको। a2 a1 z2। ये हमारा क्या कहता है? लेमा 2 कहता है। सर लास्ट में ब्लैक बोर्ड नहीं दिखा? लास्ट में z2 goes to a2 a1 z2। क्या करना है आपको? यहां पे हाथ रख लो, पहले वाला वेरिएबल छोड़ के बाकी जितने वेरिएबल्स हैं उसको इक्वेट कर दो z2 के बराबर। तो ये वाला पहला a2 मैंने छोड़ दिया, बाकी क्या बचा मेरे पास? a2 a1, उसको बराबर कर दिया। z2 goes to a2 a1 प्लस इसी प्रोडक्शन के लास्ट के ऊपर लगा दो z2, ठीक है। इसी Hello. प्रोडक्शन के लास्ट के ऊपर आपको लगाना है z2। a2 goes to हेलो a1 z2। हेलो क्लियर है? हेलो हाँ जी, हेलो सर। बोलो बेटा। सर लेमा सर किसको बोलते हैं? हाँ सर लेमा किसको कहते हैं? बेटा, ये थ्योरम्स हैं लेमा, जिसका रिजल्ट लेमा। मैं यूज कर रहा हूँ। ये दो थ्योरम्स हैं, लेमा 1 एंड लेमा 2, जो कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ। लेमा 1 कब लगता है? जब आपका जो सबस्क्रिप्ट है वो बड़ा है, ऐसे यहाँ पे लेमा 1 लगेगा। और लेमा 2 कब लगता है? जब आपका सबस्क्रिप्ट जो है वो बराबर है, 2 2 3 3 1 1। समझ आ गया? यस सर। अब ये तो था एक पार्ट लेमा 2 का। लेमा 2 और क्या कहता है कि जो आपकी हमने z2 किसकी जगह पे लिया था? a2 की जगह पे, ठीक है। इसकी जगह पे हमने z2 लिया था, a2 की जगह पे। a2 की जो रिक्वायर्ड फॉर्म में है उसके लास्ट के ऊपर आपको z2 लगाना है। a2 की वो वाली प्रोडक्शन जो रिक्वायर्ड में है, एक है b, यहाँ पे लगा दो z2, और दूसरी है a2 goes to a1 z2। so that's it for step number 3। लेमा 2 क्या कहता है कि जोन सा भी वेरिएबल आपने सपोज करा है उसको सबसे पहले नाम देना है 2, z2। यहाँ पे हाथ रख के बाकी जितने वेरिएबल्स बचते हैं a2 a1 के बराबर कर दो z2 को, प्लस इसी के लास्ट के ऊपर लगा दो
Z2, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वी हैव अज्यूम्ड Z2 फॉर A2, इसकी जगह पे अज्यूम करा है ना मैंने, A2 की जगह पे Z2 लिया हुआ है। A2 की जितनी प्रोडक्शन रिक्वायर्ड GNF में है, जो रिक्वायर्ड GNF में है, उसके लास्ट के ऊपर लगा दो Z2, बस। ये आपका स्टेप नंबर 3 फिनिश हो गया। कोई डाउट है तो पूछ लो। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ A2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ Z2 ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ A2 goes to A2 A2 A1 ਆ, ਉੱਥੇ 2 A2 A2 ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ Z2 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਬੇਟਾ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ A2 ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਆ Z2। ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਤੇ A2 ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ओरिजिनल ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ओरिजिनल ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, that is A2 goes to A2 A2 A1। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2 2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਯੈਸ ਸਰ, ठीक है, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ Z2। ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਓ, बाकियों को छोड़, इधर वाली साइड भूल जाओ। Z2 को इक्वेट कर दो A2 A1 के बराबर, Z2 को इक्वेट कर दिया, Z2 goes to A2 A1, ठीक है। ओके सर। बस इसी के लास्ट के ऊपर लगा दो Z2। ये रिजल्ट है लेमा 2 का, जो मैं आपको यूज करने के लिए कह रहा हूँ। अपने थ्योरम क्या कहती है वो छोड़ दो, सिर्फ रिजल्ट अप्लाई कर रहा हूं मैं। ठीक है सर। सिमिलरली Z2 जो था वो किसकी जगह पे हमने लिया था, A2 की जगह पे। यस सर। A2 की जो ओरिजिनल प्रोडक्शंस थी वो कौन कौन सी थी, एक ये वाली थी जो रिक्वायर्ड GNF का पार्ट थी, उसके लास्ट के ऊपर लगा दो Z2 प्लस इसके पीछे लगा दो Z2। समझ आ गया? Yes, इसके sir. लास्ट के ऊपर पीछे लगा दो Z2, इसके लास्ट के ऊपर लगा दो Z2। तो ये आपका स्टेप नंबर 3 फिनिश हो गया। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। हेलो हाँ जी सर। बोलो। सर हमने स्टेप 2 के अंदर जो A1 गोस टू A2 है उसको क्यों नहीं कंपेयर किया? बेटा उसके अंदर क्यों नहीं लेमा लगाया? नहीं, आपको उसके अंदर वही तो बोला है ना कि जब हमारे पास ये वाली कंडीशन होती है, जब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का सबस्क्रिप्ट जो छोटा होता है, उस केस के अंदर हम कुछ नहीं करते, उसके लिए कोई लेमा नहीं बना हुआ है, उसकी सिर्फ वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। A2 की जब रिक्वायर्ड फॉर्म के अंदर आ जाएंगी ना सारी वैल्यूज, तो वो मैं पुट करूंगा। अब स्टेप नंबर 4 वही करने जा रहा हूँ। ओके सर। पंपिंग लेमा 1 कहां पे लगेगा, जब आपका लेफ्ट हैंड साइड का सबस्क्रिप्ट बड़ा होगा राइट हैंड साइड के फर्स्ट वेरिएबल के सबस्क्रिप्ट से। सिमिलरली लेमा 2 कहां पे लगेगा, जब आपके दोनों सबस्क्रिप्ट की वैल्यू बराबर होगी, ठीक है। तो इन केसेस के अंदर लेमा बना ही नहीं है। जब आपका इधर वाला सबस्क्रिप्ट छोटा है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वो वाली प्रोडक्शन आपको चौथे स्टेप के अंदर सोल्व करनी है। समझ आ गया रिधिमा? यस सर। चलो अब करने जा रहा हूं स्टेप नंबर 4। तो अगेन स्टेप 4 के अंदर पे भी सबसे पहले हमारा कौन सा काम है, वोवली प्रोडक्शंस लिखिए जो रिक्वायर्ड में है। राइट दोस प्रोडक्शंस विच आर इन रिक्वायर्ड GNF। तो सबसे पहले A1 की थी, A1 goes to A। उसके बाद A2 की एक एक करके लिखने जा रहा हूं। A2 की पहली प्रोडक्शन क्या थी, A2 goes to B, ठीक है। A2 goes to A1। उसके बाद A2 goes to B Z2, A2 goes to A1 Z2। कोई डाउट है तो पूछिए। ये प्रोडक्शंस कैसे आई, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ये स्टेप 4 के अंदर मैंने वो वाली प्रोडक्शंस लिखी हैं जो स्टेप 3 के बाद रिक्वायर्ड फॉर्म में आ चुकी हैं, ठीक है। अब इसको चाहे नंबर करते जाओ। ये आपका हो गया नंबर 1,
नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। नो डाउट। नो सर। अब आपको मैंने बोला था कि एक प्रोडक्शन को स्टार मार्क कर दो। वो प्रोडक्शन कौन सी थी? A1 goes to A2, A2 यही थी जो मैंने बोला था स्टेप नंबर 4 के लिए रखेंगे हम लोग। ठीक है बेटा। अब A2 की सारी प्रोडक्शन जो है, 4 प्रोडक्शन है A2 की जो रिक्वायर्ड फॉर्म में आ चुकी हैं। अब एक एक करके वो वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाओ। तो पहले इसको पुट करो, फिर इसको पुट करो, फिर इसको पुट करो, फिर इसको पुट करो। उससे क्या होगा? A1 की आपके पास सारी प्रोडक्शन आ जाएंगी। तो क्या करने जा रहा हूं? A1 goes to A2 की पहली वैल्यू क्या है? B, तो यहाँ पे पुट कर दिया। ये बन गया आपका नंबर 6। नेक्स्ट, उसके बाद A1 A2 नंबर 7। नेक्स्ट B Z2 A2 नंबर 8। लास्ट A1 Z2 A2 नंबर 9। ठीक है बेटा। तो ये आपकी A1 की भी 4 प्रोडक्शन ये और 1 प्रोडक्शन ये, टोटल 5 प्रोडक्शन हो गई आपके पास। A1 की कितनी प्रोडक्शन हो गई? टोटल 5। सिमिलरली A2 की कितनी प्रोडक्शन हो गई आपके पास? टोटल 4। समझ आ गया? मैंने कुछ नहीं करा है। जिसको मैंने स्टार मार्क करा था, ये आपका स्टार मार्क वाला प्रोडक्शन था, उसको अब A2 की प्रोडक्शन के साथ रिप्लेस कर रहा हूं। ये वाली वैल्यू इसके साथ रिप्लेस करी, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। आपके पास क्या आया है? ये फॉर्म्स आ गई। अब ये नंबरिंग मैंने उसी को करी है जो आपकी GNF का पार्ट बन चुकी है। GNF मींस ईदर यू हैव A1 goes to small a और A1 goes to small a b। इस तरीके की फॉर्म आपके पास आ चुकी है। ठीक है, ये आपका स्टेप नंबर 4 फिनिश हो गया। लास्ट स्टेप पेंडिंग है, स्टेप नंबर 5। अब बेटा आप में से मेरे को कौन बताएगा कि अब कौन सी प्रोडक्शन पेंडिंग है जो रिक्वायर्ड फॉर्म में नहीं है? Anyone from you people who will tell me about those productions which are not in required GNF? Sir, Z2 goes to A2 A1 and Z2 goes to A2 A1 Z2. कौन बोला? सागर। सागर, हाँ जी बोलिए बेटा, कौन सी प्रोडक्शन रिक्वायर्ड में नहीं है? Sir, Z2 goes to A2 A1 and Z2 goes to A2 A1 Z2. शाबाश, वेरी गुड। एनीवन एल्स? इसके अलावा? सागर को समझ आ रही है सिर्फ? सर अब बेटा आपके पास A1 की सारी प्रोडक्शन आ गई, A2 की सारी प्रोडक्शन आ गई। चलिए, स्टेप नंबर 5 इज स्पेशली डिजाइंड फॉर Z प्रोडक्शंस। ठीक है, लास्ट स्टेप अंडर GNF, स्टेप नंबर 5, इट इज फॉर Z प्रोडक्शंस। तो Z प्रोडक्शन की पहली प्रोडक्शन है मेरे पास Z2 goes to A2 A1। A2 की सारी प्रोडक्शन रिक्वायर्ड में आ गई है ना, तो एक एक करके वो वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाओ। आपके पास Z की भी प्रोडक्शन आ जाएंगी। तो पहली वैल्यू क्या थी? A2 की पहली वैल्यू थी Z2 goes to B। B सिंपल B था, B को पुट कर दिया, ये प्रोडक्शन बन गई और इसको नंबर दे दिया मैंने नेक्स्ट 10। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू A1 A1 नंबर 11। नेक्स्ट B Z2 A1 नंबर 12। A1 Z2 A1 नंबर 13। ठीक है, ये भी रिक्वायर्ड में आ गई। उसके बाद एक प्रोडक्शन अभी और है, वो कौन सी थी? इसी के पीछे Z2 लगा हुआ है, दैट इज यूजिंग Z2 goes to A2 A1 Z2। मतलब क्या है? इसके सबके पीछे Z2 लगा दो, दैट्स इट।
ठीक है, बस ये आपका खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 14। नंबर 15 ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਦੱਬਣੀ ਆ? ये कौन है? और नूर क्या हुआ बेटा? ये बेटा समझ आ गया? नाउ योर जीएनएफ फाइनल जीएनएफ विल कंसिस्ट ऑफ टोटल 17 प्रोडक्शंस। ठीक है, ये टोटल 17 प्रोडक्शंस आ गई आपके पास आफ्टर कन्वर्शन। ये समझ आ गया सबको? कोई डाउट है तो पूछ लो। बेटा समझ आ गया है? आगे चलें। तो रिपीट कर रहा हूं एक बार फिर, इसके अंदर जीएनएफ की कन्वर्शन के अंदर टोटल होते हैं हमारे पास 5 स्टेप्स। सो इन स्टेप नंबर 1 you will further have 4 steps. Step 1 part 1 you will have to check for null production. Step 1 part 2 you will have to check for unit production. Step 1 part 3 you will have to check that whether your grammar is in CNF or not. If it is in CNF, then no need for this step. If those productions are not listed under the category of CNF, then you will have to convert those productions into CNF, right? Step 1 part 4 renaming of variables, right? And you will have to maintain the order of your variables. If S is written as first position, then go for S will be renamed as A1 or A0. It's up to you, right? And if after S there is A will be renamed as A2. If you have started with A1, A2, A3 and so on, then rename your original productions in the form of subscripted value. So this is about step number 1. In step number 2, you will have to write those productions which are in required form. After that, you will have to check for subscripts. In step 2, lemma 1 will be applicable. In step 3, lemma 2 will be applicable. Lemma 2 is applicable where you have equal subscripts on both hand side. Then step 4 will be specially designed for those whose left hand side subscript is smaller than right hand side subscript. And last but not the least, step number 5, that is, it is specially designed for Z productions. So this is about your GNF. ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करना, ये पेपर में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? तो इसके नोट्स में आपको डाल दूंगा लेक्चर के बाद। सो टाइम फॉर पोल 1। सो यू हैव 2 minutes, हरी अप। हेलो सर। हेलो हेलो हेलो।
Hello. 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 So next topic is push down automata. Screen visible है सबको? Yes, sir. We have just finished chapter number 6. Your next chapter No, is sir. push down automata. This is the second last chapter. After that, we have chapter number Turing machine and Body is some not miscellaneous definitions are there. Hello. हेलो, हाँ जी, Hello. बोलो, Body sir visible नहीं है. क्या विजिबल नहीं है? Hello. Sir स्क्रीन बेटा visible नहीं विजिबल है. क्यों विजिबल क्यों नहीं है? पता कितने नहीं बच्चों को sir. विजिबल नहीं है? सर मुझे भी नहीं था। सर विजिबल है। सर विजिबल है। बेटा ध्यान से देखिए ना उधर जाकर। Yes sir visible है. सर स्क्रीन पिन करी होगी बच्चों ने, सभी को बाकी विजिबल है। हाँ चेक करो बेटा, आपने अपना रूटीन उसके फर्स्ट वाला मेरे वाला खोलिए, जो फर्स्ट पोजीशन पे मेरा आ रहा है ना Yes उसको sir, आ ओपन गया. कीजिए। हो गया? Yes sir. आपके एंड के ऊपर शम्मी आलम हो गया आपका? नहीं सर। आपने बेटा नेक्स्ट पेज ओपन करा होगा, फर्स्ट वाला मेरे वाला ओपन कीजिए पेज, फिर आपको विजिबल होगी स्क्रीन। हाँ जी सर, हो गया। हो गया? हाँ जी सर। चलिए, so next chapter is push down automata. First of all, contents. Why we need PDA? Definition of PDA.
acceptance of any string by a push down automata, push down with 2 stacks, PDA with 2 stacks. It is also called 2 PDA. And then how context free languages and PDA are related. So we will be covering these 5 topics under push down automata. So first is why we need PDA, right? So आप लोगों ने देखा होगा, first of all definition, a push down automata is a way to implement a context free language in a similar way we design a DFA. बेटा आपने देखा होगा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी जरूरत क्यों होती है। अब आपने पढ़ा हुआ है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, डीएफए पढ़ा है। डीएफए के अंदर हम लोगों ने जो स्ट्रिंग्स की एक्सेप्टेबिलिटी करी थी, उसके अंदर एबीसी स्ट्रिंग हो गई या डबल ए डबल बी इस तरह की स्ट्रिंग हो गई, उस तरह की स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करता है। लेकिन whenever you have a strings of the form of a raised to power n, b raised to power n, ठीक है, तो डीएफए को नहीं पता चल पाता है कि कितने नंबर ऑफ एज हैं, कितने नंबर ऑफ बीज हैं। टू काउंट द नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज वी विल गो फॉर पुश डाउन ऑटोमेटा। समझ आ गया? अगर आपके पास ए आया स्टैक के अंदर तो हम उसको पुश कर देंगे स्टैक में। अगर इनपुट के अंदर आपके पास ए आया तो ए को पुश कर देंगे स्टैक के अंदर, पीडीएस पुश डाउन स्टोर या पुश डाउन स्टैक बोला जाता है। अगर आपके पास बी आया तो ए को हम रिमूव कर देते हैं। तो इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो कि कितने एज हैं और कितने बीज हैं। दैट इज व्हाई वी नीड पीडीए। समझ आ गया? ठीक है, टू काउंट द नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा। So let's get started with the definition first. So a push down automata is a way to implement a context free grammar in a similar way we design DFA for regular grammars. A DFA can remember finite amount of information, but a PDA can remember infinite amount of information. The main difference is that कि DFA के अंदर हम लोग कुछ फाइनाइट इंफॉर्मेशन को रिमेंबर याद रख सकते हैं, बट इन केस ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा यू कैन रिमेंबर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी बताता हूं कैसे। A PDA is more powerful than finite automata. Any language which can be accepted by finite automata can also be accepted by push down automata. Push down automata also accepts a class of language which even cannot be accepted by finite automata. तो PDA कुछ इस तरह की लैंग्वेजेस को भी एक्सेप्ट कर लेता है जो कि फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा एक्सेप्ट नहीं करी जाती है। इसलिए PDA is much superior than finite automata. Am I clear? So basically अगर आप finite automata के अंदर स्टैक का कॉन्सेप्ट ऐड कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा? पुश डाउन ऑटोमेटा। When you combine FA with stack memory, then you will get PDA, push down automata, right? अब स्टैक क्या होता है? स्टैक इज बेसिकली इज अ लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो। स्टैक क्या होता है आपका? स्टैक को आप लिफो कह सकते हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट पे इन हुआ है वो सबसे पहले आउट होगा। क्या देख रहे हो? ठीक है, आपका बोर्ड विजिबल है ना साथ में? स्टूडेंट्स बोर्ड विजिबल है ना? यस सर। ठीक है, तो स्टैक का मतलब क्या होता है? सपोज यू हैव कॉइंस, तो यू हैव अ बंच ऑफ कॉइंस। ये मैं कॉइंस रखते चला जा रहा हूँ, सबसे लास्ट के ऊपर कौन सा कॉइन आया है? ये वाला, तो ये सबसे पहले जाएगा। दिस इज कॉल्ड टॉप ऑफ द स्टैक। ये आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो मैंने एक के ऊपर दूसरा कॉइन रखा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और यू कैन आल्सो से इट एज फिलो,
फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो सबसे पहले इन हुआ था ये वाला, ये सबसे लास्ट के ऊपर आउट होगा। एम आई क्लियर? सो LIFO कैन बी आल्सो known as FILO, first in last out. So we have two operations of stack, push and pop operations. Push and pop operations. कोई चीज ऐड करना होता है पुश करना, और कोई चीज डिलीट करना होता है पॉप करना। ठीक है, कुछ चीज की एडिशन को बोला जाता है पुश, कुछ को डिलीट को बोला जाता है पॉप। क्लियर है? तो ये हमेशा एक ही एंड के ऊपर होता है, इंसर्शन एंड डिलीशन, दैट इज कॉल्ड TOS, टॉप ऑफ स्टैक। TOS क्या होता है? टॉप ऑफ स्टैक के ऊपर ही आप एलिमेंट को पुश कर सकते हो, TOS के ऊपर ही आप एलिमेंट को पॉप कर सकते हो। नेक्स्ट, मॉडल ऑफ PDA। सो ये दिखने में जो डायग्राम आपको दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, सो इसके तीन तरह के पार्ट्स होते हैं। एक को बोला जाता है इनपुट टेप, ठीक है, ये आपकी इनपुट टेप है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। एक आपके पास फाइनाइट कंट्रोल होता है, और एक आपके पास होता है स्टैक। ठीक है, सो एक आपके पास क्या होती है, इनपुट टेप होती है। ये लेट सपोज आपकी इनपुट टेप है जिसके अंदर आपकी इनपुट होगी। एक होता है आपके पास रीडिंग हेड, ठीक है, रीडिंग हेड जो होता है वो कनेक्टेड होता है FC के साथ। FC इज फाइनाइट कंट्रोल, जो आपको स्टेट्स की इंफॉर्मेशन देता है, स्टेट्स की इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है स्टैक, पुश डाउन स्टैक, PDS बोला जाता है। ठीक है, इनपुट से सिंबल आपके पास इसके अंदर स्टोर होते हैं PDS के अंदर, पुश डाउन स्टोर। ठीक है, तो आप ये वाली डायग्राम भी बना सकते हो, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल है उसको भी बना सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड स्टोर, पुश डाउन स्टैक या फिर स्टोर। सो रीड ओनली इनपुट टेप के अंदर क्या होता है, आपकी इनपुट आती है। फॉर एग्जांपल आपके पास ए है, B और C ये आपकी इनपुट टेप है। यहाँ पे कुछ एंड मार्कर लगे होते हैं, एनी एंड मार्कर कैन बी देयर। ठीक है, सो रीडिंग हेड, FC स्टैंड्स फॉर फाइनाइट कंट्रोल, जो कि आपको स्टेट्स की इंफॉर्मेशन देगा। एंड देन यू हैव स्टैक विच इज कॉल्ड पुश डाउन स्टोर या फिर पुश डाउन स्टैक, जिसके अंदर इनपुट से जो सिंबल है वो जाते हैं स्टोर होने के लिए किसके अंदर, स्टैक के अंदर। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड सुपीरियर देन FA, क्योंकि जो हमारा FA है उसके अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है, हमारे पास कोई भी स्टोर नहीं होता है। दैट इज व्हाई दिस इज मच सुपीरियर एंड इट कैन स्टोर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर है? नेक्स्ट, जैसे हम लोगों ने फाइनाइट ऑटोमेटा, DFA, नीले मूरे मशीन्स और ग्रामर की टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ी हुई है, सिमिलरली हमारे पास पुश डाउन ऑटोमेटा का भी टेक्निकल डेफिनेशन है। ठीक है, सो टेक्निकली पुश डाउन ऑटोमेटा इज 7 टपल्स। टेक्निकली पुश डाउन ऑटोमेटा इज ऑफ 7 टपल्स। तो सबसे पहला टपल है Q। Q क्या होता है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। सिग्मा, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स। तो क्या होते हैं, पुश डाउन सिंबल्स, जो आपके स्टोर के अंदर स्टोर होते हैं, जो आपके स्टैक के अंदर स्टोर होते हैं। नेक्स्ट, डेल्टा इज अ ट्रांजिशन फंक्शन which maps Q into sigma into tau, Q into sigma into tau goes to Q into tau। इसका मतलब क्या है, current state, or you can say that present state, this is your present input,
present PDS symbol, right? And this Q is new state, and this tau is new PDS symbol. So this is your delta in case of push down automata. So delta is a transition function. Delta is a transition function. Delta is a transition function. Q naught. Q naught is the initial state. हेलो Hello. हेलो हाँ बोलो सुमित. हेलो बोलो सुमित. सर, इसमें जो पीडीएस, सर पीडीएस सिंबल में जो लिखे हैं उसको सर क्या बोलते हैं, क्या नाम देते हैं उसको? किसको किसको? पीडीएस सिंबल में जो लिखे हैं आप, प्रेजेंट पीडीएस सिंबल में जो आप लिखे सिंबल हैं, सिंबल्स इसको टो बोला उसको क्या जाता है. नाम देते हैं? टो टो बेटा टो. ये है तो टो बोला जाता है. टो टी जैसा होता है ये दिखने में. ठीक है. दिस इज कॉल्ड टो सिंबल. ये मैथ्स का सिंबल है जो आपने पढ़ा होगा. नेक्स्ट लास्ट है जेड नोट. जेड नोट क्या होता है? टॉप मोस्ट सिंबल इन पीडीएस. तो समटाइम्स आप पीडीएस के अंदर टॉप के ऊपर देखोगे जेड नोट पड़ा होगा आपके पास. सो दिस इज द टॉप मोस्ट सिंबल, टॉप सिंबल ऑफ स्टैक, जेड नोट. सो ये आपकी है टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ पीडीए. क्लियर है? सो नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन है जो हमें बताता है कि ये कैसे चेंज होता है, वो देख लो. सो मैंने पहले भी बता दिया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है Q कोमा सिग्मा इंटू एक्स गोज टू Q डैश Y. इसका मतलब क्या है? Q एक पुरानी स्टेट है, ये Q इज अ ओल्ड स्टेट, सिग्मा इज अ इनपुट सिंबल, एंड X क्या है? टॉपमोस्ट सिंबल ऑफ टॉपमोस्ट स्टैक सिंबल. दैट इज पीडीएस के अंदर पहला हमारे पास क्या है? X है. उसके बाद जब इसकी ट्रांजिशन हो गई तो आपके पास नया सिंबल कौन सा आ गया? नई स्टेट कौन सी आ गई है? Q डैश, एंड नया Y सिंबल है जो मैंने टॉप के ऊपर पुश कर दिया है. तो ये डायग्रामेटिकली देख लीजिए. ठीक है. सो टॉप मोस्ट सिंबल क्या था मेरे पास? Z था. X क्या था? X इज अ ओल्ड सिंबल जिसको मैंने पुश करा था. अब X को रिप्लेस करना है आपने Y के साथ. पुरानी आपके पास स्टेट थी Q और नई स्टेट कौन सी आ गई आपके पास? Q डैश. समझ आ गया? नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा. हाउ पीडीए इज रिप्रेजेंटेड. सो पीडीए इज रिप्रेजेंटेड विद आईडी, इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन. इसको लिखा कैसे जाता है? उल्टी टी के साथ, टिल्डा साइन बोला जाता है इसको, टिल्ड और टिल्डा. PDA is represented with ID, which is called instantaneous description or denoted by tau sign, and ID is Q naught comma X comma Z naught. This means that PDA is in initial state, that is Q naught. X क्या है? आपकी इनपुट स्ट्रिंग है. पीडीए को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं आईडी. आईडी स्टैंड्स फॉर इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन. ठीक है. Q नोट कोमा X कोमा Z नोट. ये क्या होता है आपका? इनिशियल स्टेट. ये X क्या है? आपकी इनपुट स्ट्रिंग जो हम लेंगे, अभी बताता हूं आपको एक्सेप्टेबिलिटी करके. ठीक है. इनपुट स्ट्रिंग जो आप अज्यूम करोगे, और ये आपका क्या है? टॉप मोस्ट सिंबल है स्टैक के ऊपर जो प्रेजेंट है, टॉप मोस्ट सिंबल नेमली Z नोट. तो राइट नाउ स्टैक के ऊपर सिर्फ मेरे पास अभी क्या पड़ा हुआ है? Z नोट पड़ा हुआ है. ठीक है. तो ID is a instantaneous description. It is having 3 parts. It is represented with tilde sign. ऐसे लिखा जाता है इसको Q naught, X, Z naught, where Q naught is the initial state,
X is the input string to be processed and Z naught is the topmost symbol. यहां तक कोई क्लियर है? सबको क्लियर है यहां तक? So again, time for polls. ठीक है, so poll मैं लॉन्च कर रहा हूं यहां से. हेलो सर. हाँ जी, हेलो. हेलो सर, इसका जो फाइनल एग्जाम होगा वो एमसीक्यू टाइप रहेगा कि थ्योरेटिकल, ये लॉन्ग वाला बेटा क्वेश्चन अभी रहेगा? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. 50% चांसेस है, 50-50. मल्टीपल भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है. ठीक है, अगर तो गवर्नमेंट ने कॉलेजेस ओपन कर दिए तो आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, अगर नहीं हुए तो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा. चलिए, पोल विजिबल है सबको, आंसर कीजिए. हेलो. हेलो. हेलो सर. हेलो. हेलो बोलते क्यों नहीं, बोलो. सर. पोल शो नहीं हो रहा है. बेटा क्यों नहीं हो रहा है? सब बच्चों को हो रहा है, दोबारा आपको सर क्यों नहीं हो ट्राई रहा है? कर. सर इधर नेटवर्क इशू सर हो जा रहा है. हाँ जी, सर नेटवर्क इशू हो जा रहा है इधर. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दो अगर नहीं हो रहा तो. आंसर फास्ट कीजिए बेटा थोड़ा, सिंपल से क्वेश्चंस हैं दोनों. So I'm going to end the poll. So first question था आपका, PDA is a 7 tuples machine. PDA के 7 tuples होते हैं. 44 स्टूडेंट्स ने बिल्कुल ठीक आंसर करा है. सेकेंड क्वेश्चन है, PDA is represented with instantaneous description. 6 बच्चों ने गलत आंसर करा हुआ है. रिजल्ट देख लो. ठीक है, एक पोल बेटा और है आपके पास, इसको भी अटेम्प्ट कीजिए.
ये थर्ड पोल है, फटाफट अटेम्प्ट करो इसको भी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है, पोल एंड कर रहा हूं मैं। ये 2 पीडीए की डेफिनेशन अभी हमने पढ़नी है। सो सिंपल पीडीए जो होता है वो 7 टपल्स होता है, ठीक है, और जो 2 पीडीए है वो आपका 6 टपल्स होता है। तो एंड सिंबल जो है, सिंबल्स तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसके अंदर एक सिंबल कम होता है। तो मैं आपको अभी डेफिनेशन बताता हूँ, फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट देख लीजिए, एंड जो है वो यूज नहीं होता, एंड वाला सिंबल जो है। सो वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। सो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ स्ट्रिंग बाय पुश डाउन ऑटोमेटा। तो आपको याद होगा कि हमने एक्सेप्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर पढ़ा था, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो सेम रहेगा कि व्हेनेवर यू विल स्टार्ट विद द इनिशियल स्टेट आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ एंटायर स्ट्रिंग, you will end up at the final state. That thing is called acceptability, right? So here the concept remains same, लेकिन इसके अंदर हमारा जो डेल्टा है, डेल्टा का मतलब होता है ट्रांजिशन फंक्शन, उसको मैं कुछ रूल्स के द्वारा डिफाइन करता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ए क्या है आपका, एक पुश डाउन ऑटोमेटा है, ठीक है। उसके अंदर 7 टप्पल्स हैं। तो पहला टप्पल क्या है आपका, स्टेट्स। तो उसके अंदर 3 स्टेट्स हैं, Q0, Q1 एंड QF। Here Q0 is the initial state, QF is the intermediate state, Q1 is the intermediate state, and QF is the final state. Next, ABC. ABC क्या है आपके, inputs हैं, input symbols हैं. Then we have small a, small b, z node. So these are your toe, part of toe, push down stack symbol. Then delta. Delta is represented with these rules. तो ये डेल्टा के मैंने रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें इनपुट सिंबल और टो में कैसे अंतर होगा? हाँ जी, इनपुट सिंबल ए बी और टो बी ए बी कैसे जानेगा कौन कौन? बेटा जो पहले लिखे जाते हैं वो आपके सिग्मा होते हैं, जो बाद में लिखे जाते हैं जिसके अंदर जेड नोट आता है वो टो का पार्ट होता है, ये याद रखना। इनपुट के अंदर कभी भी जेड नोट नहीं होगा, ये डिफरेंस दोनों में। जिसके अंदर जेड नोट आएगा वो आपका टो है, ठीक है यशवंत। यस सर। नेक्स्ट, डेल्टा क्यू नोट इनिशियल स्टेट है, जेड नोट आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट है, एंड क्यू एफ आपका फाइनल स्टेट है। सो वेयर डेल्टा इज डिफाइंड एज, सो whenever you have small a in your input and z note at the
टॉप ऑफ द स्टैक, तो उसको क्या लिखोगे आप? ये रूल्स कैसे ड्राइव कर रहा हूं ये याद रखना। Q नोट कोमा A is a input, A is a input and Z नोट is a topmost symbol। ठीक है, तो इसके लिए रूल क्या है आपके पास? इसको आपने लिखना है Q नोट स्टेट विल रिमेन सेम, और आपका जो A है वो पुश हो जाएगा किसके ऊपर? तो पहले आपके पास स्टैक के ऊपर क्या पड़ा था? सिर्फ Z नोट था। तो जब आपके पास A आया तो A विल बी पुश्ड ऑनटू द स्टैक। समझ आ गया? जब आपके पास A आया, A को मैंने पुश कर दिया स्टैक के ऊपर। सिमिलरली whenever you have a B as a input and topmost element is Z node, then B will be pushed. B will be pushed. ये क्या हो गया? B को मैंने पुश कर दिया स्टैक के ऊपर। ये रूल्स हम लोग खुद डिजाइन करते हैं एंड कुछ एग्जांपल्स के अंदर आपके पास ये रूल्स गिवन होंगे। अगर गिवन नहीं है तो आपने खुद बनाने हैं। ठीक है, तो ये मैं बनाने का तरीका आपको बता रहा हूं। whenever you have A will be pushed onto the stack, whenever you have B will be pushed onto the stack। ठीक है, सिमिलरली जब आपके पास A है, Q नोट A है दोनों तरफ, तब भी आपने क्या करना है? स्टेट विल रिमेन सेम, A यहाँ पे A हो जाएगा। मीन टॉप के ऊपर भी A था और पहले से भी A था, ये चीज थी। समझ आ रहा है? सिमिलरली जब आपके पास B है, चौथा रूल, B A है, तब क्या आ गया आपके पास? B को पुश कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? B। तो समझ आ रही है आपको मैं कैसे कर रहा हूं? ठीक है, जो स्क्रीन के ऊपर रूल्स आपके पास विजिबल है वो आपको मैं कर दिखा रहा हूं। ठीक है, अगर आपके पास AB आ गया, पहले A आया, यहाँ पे A आया, यहाँ पे B था। ये वाले B का मतलब क्या है कि आपके स्टैक के ऊपर पहले से B था, स्टैक के ऊपर पहले से B था। जब A आया तो वो क्या बन जाएगा? स्टेट विल रिमेन सेम, ये बन गया AB। तो A को पुश कर दिया इसके ऊपर। ठीक है, तो ये आपके लास्ट रूल बचा है डेल्टा फॉर B के लिए। Q नोट B कोमा B, पहले से ही B था, so that B will be pushed। पहले से ही B था, अब भी B आया है तो B स्टैक के ऊपर डाल दिया। समझ लग गया? ये पहले 6 रूल्स आ गए। नाउ ऑन इंट्रोड्यूसिंग न्यू सिंबल, जब आपके पास नया सिंबल आया, आप Q डेल्टा Q नोट स्टेट पे थे, अब आपके पास नया सिंबल आया और आपके पास पहले से ही क्या था? स्टैक के ऊपर A था। तब आपने क्या करना है? नाउ इन दिस केस योर स्टेट विल बी चेंज्ड। इन दिस केस यू विल एंटर इनटू Q1। आपका C जो था वो लिखा नहीं जाएगा, वो स्टैक के ऊपर नहीं जाएगा। स्टैक के ऊपर जो था वो एज सच रहेगा। मींस के पहले भी A था, पहले भी A था, अब भी A है। समझ आ गया? लगी जी सर, ये नहीं समझ लगी। जब बेटा नया, पहले जब A था, जब A आया उसको पुश कर दिया, जब B आया उसको भी पुश कर दिया। ठीक है, लेकिन जब C आया, C को पुश नहीं करना, C को आपने क्या करना है? पुश नहीं करना है। ठीक है, जो स्टैक के कंटेंट्स थे वो एज सच रहे। स्टैक के कंटेंट्स क्या थे? A था, A रहेगा। अगर यहाँ पे Q नोट कोमा C कोमा AB पहले से होता, यहाँ पे AB पहले से होता, तो यहाँ पे भी AB बाद में भी AB ही रहेगा।
मींस के जब थर्ड सिंबल आया तो आपने कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, सिर्फ स्टेट आपकी चेंज होगी, Q0 से Q1 हो जाएगा स्टेट आपकी। बेटा मैं 1 मिनट मार्कर ले आऊं, मार्कर खत्म हो गया, वेट करना जरा। ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिंबल, ये वाला रूल बता रहा हूं, वेन एवर यू हैव अ न्यू सिंबल, तो पहले आपके पास ए और बी था, नाउ आई हैव इंट्रोड्यूस न्यू सिंबल दैट इज सी। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है, आपको स्टेट चेंज करनी है, फ्रॉम Q0 से Q1 हो गया। उसके बाद जो स्टैक के कंटेंट्स थे वो ऐसा रहेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर ए की जगह पे यहाँ पे बी है, अगर ए नहीं है स्टैक पे पहले से बी था तो यहाँ पे बी रहेगा। ठीक है, स्टैक में तो एलिमेंट बी था तो बी ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अगर जेड नोट है, अगर बी नहीं है, बी की जगह पे जेड नोट है, तो स्टैक के ऊपर क्या रहेगा, जेड नोट रहेगा। यू जस्ट नीड टू चेंज दी स्टेट ओनली, स्टेट Q0 से Q1 करोगे आप। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लास्ट रूल क्या कहता है, अगर आप नई स्टेट के अंदर हो, नई स्टेट कौन सी थी जो अभी लाए हैं Q1, एंड इनपुट में भी ए है और स्टैक में भी ए है, तब आपने क्या करना है, उसको स्टैक से भी रिमूव कर देना है और इनपुट से भी रिमूव कर देना है। तब आपके पास क्या आ जाएगा, तब आपके पास आ जाएगा Q1 null, means it will be eliminated from A or from input tab and it will be eliminated from stack। ये याद रखना, अगर आप इंटरमीडिएट स्टेट के अंदर हो और आपके दोनों इनपुट जो है वो सेम है, तब आपने क्या करना है, in your state will remain same, that is Q1, and you will have to write null over here. Similarly for B, Q1 B is equals to Q1 null। समझ आ गया, क्लियर है। तो जब आपकी इनपुट खाली हो जाएगी, मींस कि आपके पास x की वैल्यू नहीं है, उसको मैं कैसे लिखूंगा, Q1 null। Q1 लास्ट रूल बता रहा हूं, जब आपके पास इंटरमीडिएट स्टेट है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है प्रोसेस करने के लिए, मींस के नल सिंबल है, एंड तो मोस्ट एलिमेंट आपके पास जेड नोट आ गया है, तो आपको क्या करना है, आपको फाइनल के ऊपर जाना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देना है, QF जेड नोट, मींस आपकी जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्टेबल कहलाई जाएगी। ठीक है, आपने पूरी की स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग कर ली है, आप इनिशियल स्टेट से स्टार्ट हुए थे। ठीक है, पूरी x आपने प्रोसेस कर ली है, x है आपकी इनपुट, और आप फाइनल स्टेट के ऊपर आ चुके हैं। अभी आपको एग्जांपल बता, समझ आ गया, रूल्स क्लियर हैं। ये रूल्स थे जब आपके पास A, B और C आपकी इनपुट के अंदर 3 सिंबल्स हैं, ये रूल्स उसके लिए हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बस ये वाले रूल्स आपको या तो गिवन होंगे, अगर गिवन नहीं है तो आप खुद बनाओगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट एग्जांपल क्या है, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल कहती है कि चेक द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ स्ट्रिंग BACAB, BACAB। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आईडी की फॉर्म दैट इज Q0, उसके बाद x की जगह पे है BACAB, उसके बाद Z0, सिंबल यूज करना है आईडी।
ठीक है, तो सबसे पहले क्या करा, रूल कौन सा देखना है आपको, Q नोट बी जेड नोट। Q नोट बी जेड नोट का रूल क्या कहता था, मैं साथ साथ में आपको ना कंटेंट समझाता हूँ पुश डाउन स्टोर के। यहाँ पे है Q नोट बी ए सी ए बी कोमा जेड नोट, आईडी के साथ करना है अनीश ली, ये मेरा पुश डाउन स्टोर है, ठीक है, इसकी वैल्यू है मेरे पास जेड नोट। तो रूल कौन सा बेटा आपको देखना है, Q नोट बी जेड नोट। तो Q नोट बी जेड नोट के लिए रूल क्या कहता था, इनपुट से बी चला गया वो किसके अंदर आ जाएगा, स्टैक के ऊपर। तो यहाँ पे आ गया सबसे पहले बी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, Q नोट स्टेट वही रहेगी, यहाँ पे बचा ए सी ए बी कोमा बी जेड नोट। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए। इनपुट से बी हट गया, वो वाला बी किसके अंदर चला गया, पुश डाउन स्टोर के अंदर, पीडीएस के अंदर, ठीक है। अब टॉप मोस्ट एलिमेंट आपका क्या बन गया है, बी। अब रूल कौन सा देखोगे, नेक्स्ट रूल आपको देखना है Q नोट ए बी। तो इसके लिए भी रूल क्या था, Q नोट इनपुट से ए चला गया, वो ए किसके अंदर चला गया, पीडीएस के अंदर, तो बचा गया सी ए बी, यहाँ पे क्या आ गया, ए बी जेड नोट। समझ आ रहा है, यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। सर समझ नहीं लगी सर। बेटा रूल्स जो मैंने आपको समझाए वो समझ आए, नो सर। रूल्स भी समझ नहीं आए तो तब क्यों नहीं बोला आपने। सर बार बार से नेटवर्क इशू हो जा रहा है इधर चलो से। मैं ना इसकी वीडियो डालूंगा, वो वीडियो अच्छी तरह से देख लेना। तो ये ओके स्ट्रिंग समझो, Q नोट बी जेड नोट के लिए क्या करना है, ये आपकी इनपुट है पूरी की पूरी, ये आपकी आईडी लिखी हुई है, आईडी क्या होती है, Q नोट कोमा एक्स कोमा जेड नोट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब भी आपके पास इनपुट के अंदर बी है और टॉप मोस्ट एलिमेंट जेड नोट है, बी जो है वो इनपुट से चला जाएगा, वो इनपुट से चला गया किसके अंदर गया, पुश डाउन स्टोर के अंदर। तो मैंने लिख दिया Q नोट कोमा ए सी ए बी कोमा बी जेड नोट। उसके बाद रूल चेक करा, Q नोट ए बी, Q नोट ए बी के लिए रूल क्या था, ए यहां से हट जाएगा, वो चला जाएगा स्टोर के अंदर, तो यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट, नाउ यू हैव न्यू सिंबल दैट इज सी। तो Q नोट सी के लिए रूल कौन सा था, अपने रूल्स जो अभी लिखे थे हमने, Q नोट सबसे पहले तो आपकी स्टेट चेंज हो गई, वो आ गया Q1, ये इनपुट से हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी, लेकिन ये स्टैक के ऊपर नहीं जाता है क्योंकि हमने मैचिंग करनी है ए और बी की, ठीक है। तो जो कुछ आपके पास था वो ऐसा रहा, ए बी जेड नोट था, ए बी जेड नोट रहा। समझ आ गया, मींस कि whenever you have a new symbol that is C, तो सबसे पहले आपने स्टेट चेंज कर दी, Q नोट से कर दिया Q1, ठीक है, वो इनपुट से हट गया, C इनपुट से हट गया और जो स्टैक में था वो एज सच आ गया। नाउ यू आर इन द इंटरमीडिएट स्टेट एंड यू हैव सेम इनपुट एंड सेम स्टैक सिंबल A और A। यहाँ पे हमने क्या करना है, इंटरमीडिएट स्टेट रही Q1, इनपुट से भी सिंबल चला गया और स्टैक से भी चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से A हट गया और यहाँ से इनपुट से A हट गया, यहाँ से स्टैक से A हट गया, ठीक है। अगेन इंटरमीडिएट स्टेट है B और B, इनपुट पे भी सेम सिंबल है, स्टैक पे भी सेम सिंबल है, तो आपका जो इनपुट वाला सिंबल है वो भी हट गया, तो यहाँ पे सारा एम्प्टी हो गई, बचा मेरे पास नल, और यहाँ पे क्या आया जेड नोट, क्योंकि स्टैक से भी ये वाला सिंबल हट गया। अब आप लास्ट पार्ट के ऊपर आ चुके हैं, Q1 नल जेड नोट। इसके लिए रूल क्या डिफाइन था, when you are in the intermediate state and you have Q nothing to final sir, process, that is Q final, null, Q up, and आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट जो है वो जेड नोट है, तब आपके लिए रूल क्या होता है, QF F, Z note. जेड नोट। मींस आपके पास फाइनल स्टेट आ गई, इट मींस योर स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। मैंने इनिशियल से शुरू करा था, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को एग्जॉस्ट कर लिया है और मेरे पास क्या बचा है, फाइनल स्टेट आ गई है, ठीक है।
और टॉप मोस्ट एलिमेंट मेरा क्या था, अगेन z नोट हो चुका है. इट मींस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड. समझ आ गया? सर नीचे से दिख नहीं रहा, लास्ट लाइन दिखी. कहां तक विजिबल है? यहां तक विजिबल है? सर इसके नीचे वाला विजिबल है, इसके नीचे वाला नहीं विजिबल. लो ये मैंने हटा दिया है, इधर देख लो. अब इसके बाद ये है, ठीक है, Q1 B BZ नोट, इसके बाद ये आएगा और इसके बाद ये आएगा. तो स्ट्रिंग मेरी एक्सेप्टेबल है क्योंकि मैं इनिशियल से शुरू हुआ था, स्ट्रिंग मेरी खाली हो चुकी है और लास्ट के ऊपर मेरे पास फाइनल स्टेट आ चुकी है. ठीक है, ये एक और एग्जांपल है इसकी, वो भी देख लो. ये देखो, जैसे कि यहाँ पे ABCBB है, इसको प्रोसेस करो सेम रूल्स के साथ. सर ये टेबल बनाना जरूरी है? पहले हाँ बनाओ जी? फिर मिटाओ. सर ये टेबल बनाना जरूरी है? बेटा ये आपकी PD अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं बनाना तो मत बनाओ, मैंने आपको हाँ सर. समझाने के लिए बनाया था. हाँ जी सर, पहला मैं लिख दो फिर मिटा दो, है ना? अब इस एग्जांपल के अंदर बेटा देखिए, पहले हमारे पास क्या आया है, Q नोट A Z नोट. तो A पुश हो गया आपका, वो इनपुट पे नहीं लिखा गया. ठीक है, Q नोट A Z नोट का रूल क्या लगेगा, Q नोट A पुश कर दिया स्टैक के अंदर, उसके बाद नेक्स्ट रूल लगा Q नोट B आया तो B भी पुश हो गया. उसके बाद नया सिंबल आया C आया, Q नोट C BAZ नोट. तो जब C आता है तो हमने क्या किया हुआ है, जब C आता है तो आप लोग क्या करते हो, C को इनपुट से हटा देते हो, लेकिन स्टैक के अंदर जो था वो ऐसा लिख दिया. ठीक है, अब Q1 B, तो इंटरमीडिएट स्टेट के ऊपर हो, इनपुट पे भी B है, स्टैक के ऊपर भी B है. तो मैंने क्या करा है, इनपुट से भी B हटा दिया, स्टैक से भी B हटा दिया. नेक्स्ट लास्ट स्टेप, अब Q1 B A के लिए रूल डिफाइंड ही नहीं है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड नहीं है, इसने आगे नहीं जाना है. समझ आ गया? सो नेक्स्ट है हमारे पास, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा 2 PDA. ठीक है, सो हमारे पास 2 टॉपिक्स बचे हैं इस चैप्टर के, उसके बाद ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा. सो दैट्स डन फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. ये PPT और नोट्स मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा. सर ग्रुप में डाल देना. डाल देता हूँ बेटा.